5 biggest parenting mistakes जो आजकल के parents कर रहे हैं, and that will have a huge impact. You actually want me to count and say only 5? When it comes to families, when it comes to parenting, when it comes to children, well, the kids are living in a lonely world today. A child should have his or her childhood. We are killing the childhood by pushing children for various competitions and various classes. Parents को फोमो हो जाता है आजकल देख के कि उसका बच्चा इतना कुछ कर रहा है, मेरा बच्चा कुछ नहीं. इतने छोटे बच्चों को फोनिक्स के क्लास में भेजते हैं, ड्रामा के क्लास में भेजते हैं, डांस की क्लास में भेजते हैं. कहाँ नहीं भेजते हैं पेरेंट्स. बच्चों का बचपन ही ले लिया है. If you really role model your behavior and expect the same from the children, a lot of conflicts can be really reduced. Take out time to spend with the children because उनका बचपन तो निकल जाएगा ना, फिर तो वैसे भी उनको आपकी ज़रूरत नहीं होगी. 9-10 years के जब प्री एडोलेसेंट स्टेज में आ जाएंगे, उनको फ्रेंड्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ये सेंटेंस बहुत हिट करता है. Hello and welcome to yet another powerful episode of Moms Unmuted. Today we have with us a guest who literally lives and breathes education, Mrs. Geeta Sikdar. आज हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो हर एक पेरेंट के दिमाग में रहता है, चाहे वो हो राइट स्कूल सिलेक्ट करना अपने बच्चे के बारे में. व्हाट आर द बिगेस्ट पेरेंटिंग मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग, पेरेंटिंग स्ट्रगल्स जिससे हम रोज गुजर रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस everything, so stay with us till the end. Hello Geeta ma'am, thank you so much for being here for this episode of Moms Unmuted. हमारे audience के लिए would you like to give us some brief introduction about yourself? First of all, Sonia, thank you so much for calling me here. Hey ma'am, it's our pleasure. It's my pleasure too, reaching out to so many audience together. Well, I'm an educationist. I love working with children. I have graduated and post-graduated in psychology. I'm also a life coach, a parenting coach, a career counselor, and a hypnotherapist. So ma'am, you have been in this field of education since how many years? More than 25 years now. So 25 years में आपने बहुत सारे changes देखे होंगे, students को बदलते हुए, parents को बदलते हुए. So आपको क्या लगता है, what is the major change that has happened over these years? मैं भी बदल गई, दुनिया भी बदल गई. There's a very major change in the society. When we think about our young days, it was a very different life altogether. There was no technology. There was more of family relationships. Right. Today, if you walk into houses, it's more of nuclear family. If I look at education, if I look at the society, if I look at the things that are changing, there's a massive change. There is growth. At the same time, there is backward walking too. When it comes to families, when it comes to parenting, when it comes to children, well, the kids are living in a lonely world today. It's the nuclear family which has taken over. Right. There is a huge change in the society. Most of us lived in joint families. Correct. And we grew up in a very different environment. True. Now with technology, with nuclear family, with working mothers, there is a massive change in the society's structure of the families. Right. So as you mentioned, दोनों ही parents काम करते हैं and they start looking for schools. बच्चों को enroll करना है उनको जैसे ही बच्चा 2 साल का हो जाता है. So how do you think that affects their early childhood development? If I would look at it, Sonia, I think each coin has two sides. Right. There are families and parents who look for good schools, good play schools, where children are kept in a positive environment, where they learn, they socialize, they have a playway method of interacting with people. Till then it is good. But अगर कोई हम ऐसी स्कूल ढूंढ रहे हैं जहाँ बच्चा 4 घंटे के लिए चला जाएगा और हम फ्री हो गए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बिकॉज बच्चे बहुत हाइपर है, कंट्रोल में नहीं आते हैं और भेज रहे हैं, हमें कहीं भेजना है, इन दैट केस इट हैज़ गॉट अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट. वर्किंग मदर्स जो हैं वो तो प्ले स्कूल्स ढूंढती है, प्लस डे केयर सेंटर भी ढूंढती हैं. तो द चिल्ड्रन आर इन द स्कूल और आउट अवे फ्रॉम होम फ्रॉम राइट मॉर्निंग 8 o'clock to many times evening 8. Correct. That has got its own negative impact. Some of us feel that मैं पेरेंट्स जिनको मदर्स को मैं मिलती हूँ उनको ऐसा लगता है कि सोशल स्किल डेवलप होता है, बच्चे हमसे दूर रहते हैं, स्मार्ट होके आते हैं. नॉट नेसेसरी. डिटैचमेंट भी डेवलप होता है, हाइपर एक्टिविटी भी होती है, कोई कंट्रोल नहीं होता है कहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं. If a parent chooses a good environment in the form of a play center or a play school, well, it is going to be healthy and for limited hours. Then it is fair enough.
एंड जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, देर आर सो मैनी स्कूल बोर्ड्स अवेलेबल, ICSE, CBSE, IG board, Cambridge and state boards. So can you tell us something about every board? कौन सा बोर्ड किस चीज़ के लिए सही है? मुझे मेरे बच्चे को अगर किसी बोर्ड में डालना है तो मैं कैसे सिलेक्ट करूं कि मुझे कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करना चाहिए? बोर्ड्स बहुत है, बट लिमिटेड सिटीज में लिमिटेड बोर्ड्स, IB और IGCSE ICSE जो है वो सब जगह नहीं मिलता है. द मोस्ट कॉमन बोर्ड इज स्टेट बोर्ड. हर स्टेट में अपनी अपनी बोर्ड होती है, एंड दे हैव अ वेरी टिपिकल पेरेंट प्रोफाइल हु वॉक इन टू सच बोर्ड्स हु वांट टू हैव लोकल थिंग्स. लर्निंग लोकली होता है, टेक्स्ट बुक रिलेटेड होता है, लैंग्वेज इंग्लिश कम होता है, मोर ऑफ इट इज द लोकल लैंग्वेज दैट दे यूज. द अदर वन इज सेंट्रल बोर्ड, विच इज द मोस्ट कॉमन बोर्ड. All over the country you find lot of more than 20,000 central board schools are there in the country. वो board के अंदर का curriculum is very child centric. Children who want to go for engineering and medicine specifically, वो वाले बच्चे ज़्यादा CBSE में जाते हैं, and that is a board which is preferred. State boards भी अभी convert हो रही है central boards में, because the curriculum which is there for the competitive exams, उनकी preparation central board के schools में होती है. Okay. When it comes to international boards, or Cambridge schools, they have a very different approach, and their standards are more little higher than the CBSE board. So it is not everybody's cup of tea. Most of them want to go to CBSE boards. IB board में वो जाते हैं जहाँ पे inquiry based learning होती है. Okay. The child has to inquire a lot, research a lot, and learn on his own. So the kind of parents who can support such learning, जिनके घर में वो environment है, जहाँ पे वो education है, जहाँ वो support कर सकते हैं, वैसे बच्चों का choice होता है going for IB board. And also children who want to go abroad for higher studies, they also prefer going to international boards. Okay. एंड जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कल्चर बहुत चल रहा है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को 3-4 साल के बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एनरोल कर रहे हैं. अरे उसका बच्चा तो स्पेनिश भी सीख रहा है, अरे उसका बच्चा स्पोर्ट्स में भी जा रहा है, पर मैं मेरे बच्चे को भी डालूंगी 2 एक्स्ट्रा क्लासेस में. तो इज दिस इम्पोर्टेंट इन दिस I कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड? always believe, Sonia, a child should have his or her childhood. We are killing the childhood by pushing children for various competitions and various classes. Of course, they should be occupied. They need to learn new skills, and children are very smart these days. 20 years ago के बच्चों को मैं अगर सोचूंगी या मिलती हूँ या याद करती हूँ, they were very different. चुपचाप होते थे, क्वाइट होते थे, जो बोलते थे वो सुन लेते थे. आजकल कहाँ कोई सुनता है, हमको सुनना पड़ता है बच्चों का. चिल्ड्रन को इस तरह अलग अलग क्लासेस में भेजना इज, आई डोंट थिंक इट इज टू गुड. 1 or 2 क्लासेस इज ओके. और दूसरा क्या होता है कि दीज चिल्ड्रन आर जस्ट डेवलपिंग स्किल्स. कंपटीशन में तो मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मैं कंपटीशन 0 रखती हूँ, बिकॉज वी बिलीव स्किल्स डेवलप ही हम कर रहे हैं. राइट. Formal education starts from standard 1 onwards. All competitions can take place then. Exposing children to different skills is very important. But ये एज भी नहीं होता है कि बच्चों को पता होता है कि हमें डांसिंग करना है, हमें फुटबॉल जाना है, हमें स्केटिंग करना है. Children love to go to different classes, and parents are over enthusiastic about sending them to all possible classes. और फिर उन लोग अपने लिए, बच्चों के लिए सब खरीद के भी रखेंगे. सारे इक्विपमेंट्स हर एक क्लासेस के होंगे. चेस होगा तो चेस बोर्ड होगा, स्केटिंग जाएंगे तो उनका सब कुछ रेडी रहेगा. पर ये एज में बच्चों को खुद को अपने क्वालिटीज पता नहीं होती है, अपना स्ट्रेंथ पता नहीं होता है. सो दे शिफ्ट फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर. थोड़े दिन बाद बोलेंगे नहीं जाना है मुझे, नहीं अच्छा लगता है. तो पेरेंट्स आर लॉस्ट, इसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये ऐसे ही करेगा. और फिर हम लोग थोड़ा जबरदस्ती पुश भी करने के. हाँ, मैं खुद राहत को कभी कभी पुश करती हूँ. अभी जैसे वो चेस में जा रही है, मैंने उसको बोला कि ट्राई कर लेते हैं. देन शी वेंट फॉर अ वीक. उसके बाद शी इज लाइक कि नहीं, मुझे, मैंने फीस पे कर दी है मंथ की. दैट इज द वरी. नाउ शी इज लाइक कि मुझे नहीं जाना, मुझे मजा नहीं आ रहा. goes into tantrums and zed and unnecessary conflict with the parent. But I personally feel कि इतना फोर्स नहीं करना चाहिए. थोड़ी बहुत एक्टिविटी जरूरी है, so that you also get to know उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है. 1 or 2 activities a week, or maybe 2 days or 3 days a week बच्चा कोई एक्टिविटी करेगा तो इट्स गुड फॉर द चाइल्ड ऑल्सो एंड गुड फॉर एवरीबडी. बट पुशिंग देम जस्ट बिकॉज नेबर का बच्चा जा रहा है, सामने वाला बच्चा जा रहा है, मेरा बच्चा कहीं नहीं जा रहा है, दैट इज लेने जाने छोड़ने में ही सारा टाइम निकल जाता है. एक्चुअली पेरेंट्स को फोमो हो जाता है आजकल देख के कि उसका बच्चा इतना कुछ कर रहा है, मेरा बच्चा कुछ नहीं. इतने छोटे बच्चों को फोनिक्स के क्लास में भेजते हैं, ड्रामा के क्लास में भेजते हैं, डांस की क्लास में भेजते हैं,
कहाँ नहीं भेजते हैं पेरेंट्स। बच्चों का बचपन ही ले लिया है। क्यों इतना बच्चे, सारी जिंदगी है कंपटीशन करने, सारी जिंदगी है स्किल्स देखने, लेकिन मिट्टी में खेलना, हम जैसे छोटे थे तो कितने गेम्स खेलते थे, गेम्स के तो नाम भी नहीं पता है बच्चों को। शाम होती थी, हमारे पेरेंट्स वर्किंग हो या ना वर्किंग हो, हम इवनिंग में सारे फ्रेंड्स दौड़ के ग्राउंड के अंदर आके खेलते थे। ऐसा तो कोई फ्रीडम ही नहीं है बच्चे को आज। आज तो मेरा बच्चा अगर मिट्टी में खेलेगा तो मैं उसको उठा दो के बार आती हूँ, हाथ धो पहले। सो ये जो ओवर प्रोटेक्शन है पेरेंट्स का, बहुत एक्सेसिव प्रोटेक्शन है। मैं कुछ सब पेरेंट्स तो ऐसे खैर नहीं होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स हु आर वेरी मैच्योर एंड हु नो हाउ टू हैंडल द चिल्ड्रन, बट कुछ पेरेंट्स होते हैं जिसको मैं कहती हूँ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। राइट, हेलीकॉप्टर की तरह होवर करते रहते हैं बच्चों के ऊपर, उन्हें कोई फ्रीडम नहीं देते हैं सोचने का। गिर गए तो भी उनको तुरंत प्रोटेक्ट करने आते हैं। हाँ, नतीजा ये हो रहा है, बट मैं जो देख रही हूँ, बहुत सारे बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं, थोड़ा भी तकलीफ नहीं ले पाते हैं, गर्मी में बैठ नहीं सकते हैं, एसी वाली स्कूल ही उन्हें चाहिए। एंड मैं नहीं बिलीव करती हूँ कि इतने छोटे बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप करने की स्टेज पे ये सब होना चाहिए कि क्लासरूम एसी होनी चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए, मॉडर्न फैसिलिटी होनी चाहिए। नहीं, मैं तो स्कूल में ये चाहती हूँ, ऐसे स्कूल्स होनी चाहिए जहाँ रेती में, मिट्टी में बच्चों को खेलने मिले, पेड़ पौधों के साथ वो करे, सीखे। दिस इज द एज फॉर दैट। ओवर प्रोटेक्टिवनेस will only lead to underconfident children. right, Children who in the later stage will not be able to cope up with difficult situations. correct. Parents must understand that protection is necessary, teaching them life skills is necessary, but taking every decision for the child without letting the child speak, say or do anything is not healthy at all. तो जैसे आपने बोला हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड लाइफस्टाइल जो उन लोगों को डेवलपमेंट में हेल्प करे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट आर सम ऑफ दोज थिंग्स विच आर स्ट्रिक्ट नो इन देयर अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स? I wouldn't say there are too many strict no's. There has to be balance in everything that is done. फॉर एग्जाम्पल, बहुत बच्चा हाइपर होता है, दौड़ता है, करता है, तो डॉक्टर सबसे पहले कहेंगे शुगर कम कर दो इनका, बिकॉज इट रियली एक्टिवेट्स द ब्रेन। टेलीविजन बंद कर दो जब बच्चे बहुत स्क्रीन देखते हैं। देयर इज नो फॉर एवरीथिंग, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। हैव अ वेरी क्लियर बाउंड्रीज फॉर द चिल्ड्रन। खाना खाते हैं तो टाइम से खाएं, जो खाते हैं वो हेल्दी खाएं, वंस इन अ वाइल जंक फूड खा लेते हैं, टीवी देखते हैं तो फिक्स्ड एज वाइज टीवी होना चाहिए। जैसा एक अमेरिकन रिसर्च ये बताता है, 0 to 18 ईयर्स मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उनको लेस देन हाफ एन आवर टेलीविजन दिखाना है या स्क्रीन बताना है। धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं 1 आवर 1.5 आवर्स मैक्सिमम। और आजकल हमारे बच्चे, पहले तो पेरेंट्स को रोल मॉडलिंग करना ज़रूरी है कि वो कम टेलीविज़न देखे, वो कम मोबाइल पर बैठे, वो कम इंटरनेट यूज़ करे, और बच्चों के सामने सारा टाइम, जब भी देखो बच्चों से पूछो कि पापा क्या करते हैं, ऑफिस गए, मम्मी मोबाइल में व्हाट्सएप देखती है या फ़ोन पे बात करती है, स्टोरी नहीं सुनाती मम्मी आपको, कहाँ, मम्मी तो सारा दिन मोबाइल में फ्रेंड्स के साथ बात करती है। ये जो पैटर्न है ना, दैट इज स्ट्रिक्ट नो फॉर मी फ्रॉम माई साइड। पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन नीड देयर टाइम। सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी टाइम। हमने बहुत सारा टॉयज ला के दे दिया, बहुत सारी चीज़ें दे दी, स्पोर्ट्स में रख दिया, अच्छे स्कूल में रख दिया, और सोचा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे और अच्छे तरह बड़े होंगे। It's a triangle. The child, the school and the parent, all three are responsible for the strong foundation in early years. बट जैसे इवन मदर्स आर वर्किंग टुडे, दोनों पेरेंट्स को टाइम नहीं मिलता है, जॉब पे चले जाएंगे, घर आएंगे तो थोड़ा खुद पे टाइम दिया, फैमिली को टाइम दिया या घर को टाइम दिया, एंड फिर सोने का टाइम हो जाता है, मतलब टाइम निकलता ही नहीं है। तो हाउ डू दे मैनेज? They have to learn to manage, सोनिया। भगवान ने सभी को 24 आवर्स दिया है, किसी को एक सेकेंड एक्स्ट्रा नहीं दिया है। सो देर आर लॉट ऑफ फैमिलीज एंड पेरेंट्स आई हैव मेट जहाँ दोनों वर्किंग हैं, बट दे हैव अ क्लियर स्ट्रैटेजी। डिसिप्लिन का सेम लैंग्वेज बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट होता है, वेयर टू ब्रिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई वर्किंग वुमेन है, ठीक है, अब इंडिया में है तो वी नो आवर कल्चर, वर्किंग वुमेन को भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी है, उतना ही ऑफिस का भी रहता है। सो देर हैज टू बी अ बैलेंस। यू नीड टू नो व्हेन टू कट ऑफ। You're back from office, then your time is for your children. There are a lot of ways of handling it. पैसे हैं, कमाने जा रहे हो, you're earning, both the couples are earning. In that case, take extra help. Get up, आया, get things. आजकल तो रेडीमेड भी इतनी चीज़ें मिलती है, खैर उसका भी बहुत अगेंस्ट
lot of research says that all those are not healthy, but take extra help, bring people who can help you, take out time to spend with the children, because जिनका बचपन जो निकल जाएगा ना, फिर तो वैसे भी उनको आपकी ज़रूरत नहीं होगी. 9-10 years के जब प्री एडोलेसेंट स्टेज में आ जाएंगे, उनको फ्रेंड्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेंगे. सेंटेंस बहुत हिट करता है. बिल्कुल. आपकी ज़रूरत ही नहीं होगी, फिर आप उनको ढूंढते रहोगे. आपके पास टाइम है लेकिन उनको आपकी ज़रूरत नहीं है. ये एज है जहाँ पे बच्चों के साथ शाम के वक्त टाइम निकाल के बैठना ज़रूरी है. एंड इफ़ यू हैव एन ऑर्गेनाइज्ड proper disciplined structure in the house, even for a 3-year-old or a 4-year-old, where they know ki half an hour is for study doesn't mean learning ABCD rhymes and all. Sitting with the child, making the child understand this is a place and a time where we are going to spend learning and sharing things. Bedtime is a story time, Sundays are family time, or a tech free day, a tech free week, tech free hour. You have to take out time and balance, and there are a lot of parents who realize this and are learning it. Parenting is never a learnt activity. There is a continuous learning happening in there. So as and when the experience comes कि where can you balance your life with the family, it is very important. खाली किसके लिए पैसा जमा कर रहे हो आप लोग, earn कर रहे हो किसके लिए, family के लिए ना. family में ही अगर base नहीं होगा, foundation नहीं होगा, strength नहीं होगा, connection नहीं होगा, communication नहीं होगा, तो correction भी नहीं होगा लाइफ में आगे जाके. आई ऑलवेज बिलीव जब पेरेंट्स को बच्चे एडोलेसेंट हो जाते हैं तब उनका कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन वो कई बार कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि बचपन में कनेक्ट नहीं किया. इफ यू कनेक्ट विद चिल्ड्रन यू कैन करेक्ट देम इजीली. मुझे खुद को रियलाइज हो रही है ये चीज़ें. सो एज पर यू, जैसे जो 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं, प्री स्कूलर्स जिनको हम बोलते हैं, उनका एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए दिन का? आइडियली मॉर्निंग गेटिंग अप जस्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल, 1 घंटे पहले तो उन्हें उठाना ही चाहिए, बिकॉज लेट नाइट्स होते हैं, पार्टी करते हैं, मूवीज देखते हैं. आई नो सो मेनी मदर्स. मैं पूछूंगी कि सुबह क्यों इतने क्रैंकी होके बच्चे आते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, मैडम वो रात के 11 बजे 12 बजे तक हमारे साथ खेलते हैं या मूवी देखते हैं या टीवी देखते हैं या पार्टी गए थे. 3 to 5 year old के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए 9 hours ऑफ स्लीप इज अ मस्ट. जब पेरेंट्स ही नहीं सोते हैं तो बच्चे कहाँ से सोएंगे? बिल्कुल. और जो पेरेंट रियलाइज करते हैं वो 9 o'clock को बच्चों को सुलाना शुरू करते हैं. कुछ नहीं तो स्टोरी बोलते बोलते 10 o'clock तक बच्चे सो जाते हैं. तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम इज अ गुड रेस्ट. 9 hours of sleep is a must. After that, early morning getting up, having a relaxed way of जल्दी जल्दी ब्रश किया, जल्दी जल्दी पानी डाला, नहा लिया, दूध पिया और फिर वैन में बैठ गए और फिर the vicious circle starts. So a child should be getting up relaxed in the morning, have a good breakfast, sit in the vehicle or a van or whatever the school timings are, then come back home. Of course, the child has 100 things to share sometimes, and sometimes the mother keeps coaxing and the child says, no, I have nothing to tell. मत पूछो आप. हाँ, उनको बताना नहीं होता है, तो वो अलग टॉपिक है पेरेंटिंग का. लेकिन बच्चे आते हैं, शेयर करते हैं, खाना खा के आफ्टरनून 2 hours ऑफ नैप मिलता है, दैट इज़ आइडियल. एंड देन इवनिंग 4 to 5 hours में फिजिकल एक्टिविटी आ जाता है, गेम्स खेलते हैं. 9:30 a little bit of television here and there. 9:30 the child should be, basically you must remember that a 9 hour of sleep really helps the child's neurons to develop. Stimulating environment जब देते हैं हम बच्चों को, तो it really helps for the child to be a healthy happy child when he gets up in the morning. So मैंने बहुत कॉमन ये चीज़ देखी है, जैसे एक मदर है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, शी हैज़ सर्टन रूल्स कि नहीं मेरा बच्चा जंक नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा, या चॉकलेट खाएगा तो हफ्ते में 1 ही दिन खाएगा. एंड देन फादर है जिसको बच्चा जिद करता है तो हिल से यस चल ठीक है, एक चॉकलेट ही तो है. या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो बोलेंगे कि यार हमने भी तो बच्चे पाले हैं तो करने दे, 2 बिस्किट रोज़ खा लेगी तो क्या हो जाएगा. तो ऐसे सिचुएशन में कैसे मैनेज कर बहुत सकते हैं? मुश्किल. ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हम बहुत आर्ग्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन लोगों का अपना फिलोसफी है और उन लोगों ने अपने को बड़ा किया है, सो दे हैव अ डिफरेंट व्यू. एंड बैलेंसिंग इज द ओनली थिंग. सबसे पहली बात ये होती है कि फादर एंड मदर के जो डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज है, दे शुड स्पीक द सेम लैंग्वेज. द बाउंड्रीज फॉर द चाइल्ड शुड बी वेरी क्लियर. मदर जो बोलती है, बच्चों को बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता होता है विच साइड ऑफ द ब्रेड इज बटर. राइट, दे विल गो एंड दे आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है मेरी दाल कहाँ गलने वाली है. हाँ, तो वो पेरेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मैंने मना किया है तो आप भी मना ही करोगे. फिर देयर आर नो शॉर्टकट्स. फर्मनेस, कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड कंसिस्टेंसी इन डिसिप्लिन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब वो एक क्लैरिटी होती है कपल्स के बीच में, ये सिचुएशंस कम आते हैं.
जहाँ नहीं होती है, जहाँ प्रायोरिटीज चेंज होती है, डिसिप्लिन, अच्छा आज ले ले कल मैं नहीं दूंगी, तो बच्चे को भी पता होता है कि चलो मम्मी से आज मांग लिया तो आज मिल गया तो कल भी मिल जाएगा। बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए, बाउंड्रीज क्लियर, थोड़ा फर्म होना पड़ता है, डांटना मारना जरूरी नहीं होता है, आप थोड़ा फर्म हो जाइए, मना कर दीजिए। जैसे मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप टॉय शॉप जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, अपनी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बच्चे को तो कुछ दिखेगा तो वो जिद करेगा ही करेगा, मुझे तो चाहिए। पर अगर घर से आप बोल के निकलते हो कि टुडे वी आर गोइंग आउट और आज आपको एक टॉय मिलेगा और मैं बाकी अपना शॉपिंग करने जा रही हूँ, या नहीं मिलेगा टॉय, वॉट एवर इज देयर, इफ इट इज इवन फॉर अ 3 year old, हमको लगता है बच्चा छोटा है समझेगा नहीं, हम समझाएंगे तो बताएगा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन जब से बच्चा बोलने लगता है तब से इम्पोर्टेंट होता है, और उसको अगर बता दिया एंड देन यू गो, बट ही इज अ बच्चा, नो, सो ही विल क्राई, तो बोलेगा नहीं मुझे तो चाहिए टॉय, मेरे को आपने मुँह तो भूल ही गया कि आपने उसको क्या बोल के लेके आए थे। व्हाट डू यू डू, व्हाट विल यू डू? उसको खींच के ले जाएंगे वहां से। हाँ, मतलब सीन क्रिएट हो गया, एम्बैरेसमेंट लगेगा, या तो पापा बोल देंगे चल कोई ले बात ले, नहीं, एक ले देते हैं आज, चुप हो जाएगा, अपना काम पर कंप्लीट हो जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट। एक बार बताया था 3 year old को कि हम नहीं खरीदेंगे ये, या आप जिद नहीं करोगे, फिर भी वहाँ टेंट्रम क्रिएट होता है, लीव एवरीथिंग, टेक द चाइल्ड बैक होम और बैठ जाओ आराम से घर पे। मैं वो करूंगी, मैं उसको पकड़ के ले जाऊंगी, बट मेरे हस्बैंड दे देंगे। तो वो पहले से वही तो है, सबसे बड़ी बात वही है ना कि वहां पे जो कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन होना है वो बोल के ही निकलना है, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी लूज एंड्स होगा।